So in last session, I explained you what is the use of the project browser and what is the need of properties. Okay, so as depends on your level of development, you need to fill the some required information into the properties panel along with the means associated with the particular geometry or the particular element which you are modeling or which you are drawing on your Sir, uh, uh, yes. Hello. I think your voice is breaking sir, not able to see the screen. now. It is visible, Rahul. It is visible. Okay, so might be some issue with your end. Just check once. Yes, Rahul. Okay, good. Okay, so the what is the need of the properties when we are going to use this? So I already like explain you the background of the this both the things like what is the project browser and properties. Now, how we can start? So the first thing you need to set up your unit was what we discussed into the initial first phase, and then we need to set up the project base point and the survey point. Okay, for any of the project because once we set up those project base point on survey point, then only we can start the project. So why we need to set up those things? So the like as I told you, like there is no a single company working on to the entire project. Okay, so there are the multiple disciplines, multiple segments. So the particular specialized companies only they are working. Let's say architecture. So X company will be working on architecture environment. Y company will be working on the structure environment. Z company will be working on to the MEP environment. Again, that Z company will distribute the specialization to the respective companies. Like HVAC will be doing some Y1 company, then firefighting will be done by some other companies. So to centralize or the to make the and what we can say the common platform or the common coordinate for each of one. So we need to set up the kind of a project base point and survey point for each and every disciplines. Okay, so for that, first, you need to set up unit. How you will set the unit? If you press UN on your keyboard, you will find the project units option. And here you can set the units. Okay. So let's say everything I'm drawing with respect to the length. So for time being, I'm only setting up the length as a mm. Means everything I'm setting into the or either meters because I have used a metric template. If you are using any imperial template, then in that case you need to use the feet or inches. Okay, depends or according to your project condition. Okay, once your unit setup is done, then you need to set up your project base point and survey point. So basically where you will find those project base point and survey point. So if you press the VG, so generally we can call it as a visibility graphics. So here you will find the project base point and survey point under the site option. Okay, the shortcut for this particular command is VG, or else if you go to the manage view, and if you find this option is available here under the view. I last time I explained you, okay, what is this the view manage this, generally we call it as a tab. Under that these are the panels. Okay, so make sure whenever I'm saying the view is nothing but this is a view tab, manage is a manage tab, or architecture is a architecture tab. So under the view tab, under the graphics panel, you will find the visibility graphics option. Okay, so if you click, you can see the same option. Now what is the why we are going to use the visibility graphics, or what is the use of it? So if you want to control or the restrict any things to view on on your screen, that you can control from this particular graphics. So let's say I don't want to see my columns on my screen. So if I uncheck this column, okay, there is not a single column will be visible to me on the this particular level only. Okay, so this is also important. Whichever level is your active level, only in that particular level these things will hide, not for the entire project. Okay, so here you will, if you press S under the site, and if you drop down this site option, here you will find the project base point and project survey point. Okay, if we click OK, so now currently both the points are 0 0. So if I'm going for the project base point, let's say, see northing, southing, east and west, and elevation and angle of true north, everything is mentioned 0 0. So if you don't have any value,
So better put 0 0. So what it will happen, the architecture company they will also take 0 0, structure people they will also take 0 0, and the MEP of our team is also they will take 0 0. So when you will combine the all those three structure in one platform, it will be at the same location. There not will be a like any difference, like some building is situating into the left hand side, or some your MEP is showing exactly outside the building. Okay, so to avoid this misunderstanding or the miscommunication, we can say we need to use the proper base point and the survey point for the particular project. Okay, so first step we discuss the unit setup. Second step we discuss the project base point and survey point. Once these two things is set up, then we need to create a levels and grid. Okay, now what exactly it means the level, like why we need to create a level? The first question. Okay, so here level is representing your number of floors basically. Okay, so see, this is a complete one environment. Let's say I'm building the 15th floor building. So how should I know like where I need to put these things? Okay, or how to uh, put the furnitures into the respective level or the respect to the floor. So where should I put my windows, doors? Everything we need to understand first with respect to the levels only. Okay, so for that reason, we need to create the levels. Okay, so important questions. Levels always we are creating into the elevations only. We cannot create level in any other views apart from elevation. Okay, why? So if you go into the architecture, under the architecture panel, sorry, architecture tab and datum panel, you will find the level tab to create a level. Okay, so if you see currently I am under the floor plans, means this is my top view. Okay, so in top view, this option is deactivated. Okay, I'm not able to select this level option because in the top view, I'm not able to create any level, because level will be the always having some elevation or the some constant height, right? So if anyone asks a question related to the level where we can create a level, so level is always we are able to create only in the elevation. Apart from elevation, we cannot create level in 3D view, we cannot create in floor plan, we even cannot create in the ceiling plan. Okay, only into the elevation only this particular uh, tab will be activated. So now I'm going to I'm going into the north elevation, and here now you can see level tab is activated. Okay, so how we can create? So let's say I'm assuming my floor to floor height will be 3 meter or 3.5 meter. Okay, for just for example. Okay, and then I need to set up this height. Okay, so by default, always whenever you're opening any file into the Revit, this two levels will be the by default will it's created. We need to create the more levels. Okay, so let's say I'm assuming suppose 3.5 meter. So I'll just double click on this. Okay, and I will put the this much 3.5 meter here. Okay, now I want to create a new level. Okay, exactly on top of the level 3, level 4 like this. Okay, so how to create? First thing, you need to select the level tab. Okay, second, there are two different methods. After selecting the level tab, you can directly give the value. So you can see from the below level, it is showing me some value like 2.6 meter, or now it's 3 meter, or it's 3.5 meter. Okay, like this also you can do, but this will be somehow time consuming. So always you need to match that value, and then you need to place, and this how you need to draw. Okay, and you need to also match the ends of the level. So this end also this end. So what I will do, I will drag up to here somewhere. Okay, so this will take some time. So instead of this, what I will do, the next level. So I'll again go to the level. So here you will have a pick line tool. Okay, what exactly it will do? It is similar to your offset. So I think everyone is known about the offset command in your AutoCAD. Offset means what offset will do. So if you have any line, existing line, and if you want to create a same line at certain distance, okay, what you will do, you will put some value at how much distance the you want same line, and you will simply click the existing line. So it's automatically creating the
offset from the same line at the same distance, whichever distance you are putting. The same thing we need to do here. So what I will do, I will take this pick line tool. Then here you have offset value. So what exactly, how much distance I need between these two level? So let's say 3.5 meter. Okay, so I'm putting that distance here and simply I will select the line. So you can see the above one, the dash one blue color dash line, it's showing me the reference. So if I click on this line, automatically level 4 will be created on the top of the level 3, exactly onto the 3.5 meter. Okay, so let's say I will just click here. I can see level 4 is created. Similarly, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, 10, and 11. Let's say 11. So this is how we can easily create the levels. Okay. Down one thing. Suppose Yeah. 50-60 story multi-story building और उसमें अगर like multiple story at a time करना है, you know, so एक command में कोई नहीं होता कि number of levels and the height, ऐसा कुछ command नहीं है, because every वैसे time we have to click and we have to create a level ना. सी अभी इसमें तो वैसे ही करना पड़ेगा मैन्युअली, बट अगर आपको ऑटोमेट Manually, चाहिए अच्छा. तो काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब सर्टेन टूल्स है, बट वो थोड़ा एडवांस वर्जन में जाता है, लाइक डायनामो। मतलब कुछ प्रोग्रामिंग के वर्चुअल प्रोग्रामिंग टूल्स रहते हैं, वहां पे अगर आपने सिंगल एक क्लिक किया और कुछ स्क्रिप्ट अगर रन हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको 100 चाहिए या फिर 1000 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली विद इन वन क्लिक 1000 लेवल भी वहां पे जनरेट हो जाएंगे, बट उसके Okay, लिए but कुछ here it's एडवांस्ड a टूल सेट लगता multiple. है। Okay. यस। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू जनरेट द लेवल्स। ओके, अभी एक बार लेवल्स क्रिएट करने के बाद यू नीड टू रीनेम इट। ओके, सो रीनेम मींस लाइक लेवल 1 इज सपोज योर ग्राउंड फ्लोर और लेवल 2 इज योर फर्स्ट फ्लोर। ओके, सो आपको अगर वो रीनेम करना है, सो आइदर यू कैन डबल क्लिक हियर एंड जस्ट पुट द नेम, लेट्स से ग्राउंड फ्लोर। Like this here also you need to put. ओके, सो ऐसे अगर आप सबको रीनेम करोगे तो इट ऑटोमेटिकली वन बाय वन सबको आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रीनेम करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रीनेम हो जाता है। ओके, सो मेरे इसमें में भी कुछ एरर है तो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट अगर सपोज लेट से मैं 11 के लिए करता हूँ रीनेम, तो यू कैन सी लेट से कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे 11th फ्लोर। ओके, यहाँ पे मुझे एक कमांड पूछेगा, ओके, वुड यू लाइक टू रीनेम द करस्पॉन्डिंग लेवल एंड व्यूज एज वेल। सो अगर मैं इसको यस करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो 11th लेवल रहेगा ना उसको भी सेम नाम आ जाएगा जो मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ। ओके, सो लेट्स से कि मैं यस किया, सो यू कैन सी 11th फ्लोर। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा मुझे, सी 11th फ्लोर। सो बाय डिफॉल्ट मेरे फर्स्ट दो लेवल को नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मेरे इसमें कुछ अभी एरर आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट टू, अगर आप जो भी मैंने न्यूली क्रिएट किए हुए ना, अगर आप उसको किसी को भी रिनेम करोगे दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इनटू द ऑल व्यूज। ओके, यहाँ पे देखो आप फ्लोर प्लान में दिख रहा है, सीलिंग प्लान में दिख रहा है। आपने अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई नया व्यू यहाँ पे अगर ऐड किया रहेगा ना उसमें दिखेगा, एज वेल एज आपका जो व्यू एक्टिव है उसमें भी आपको वो चेंजेस दिखेंगे। सो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको हर एक व्यू में जाके उसको नाम चेंज करना पड़ेगा। Okay, and here you will find the level of detail. So level of detail basically क्यों लगता है and मतलब इसका जरूरत क्या है basically. So it depends on the level of development. So अगर आपने multiple layers add किए हैं for example wall में, और if you have add something like no texture or the patterns inside the any of the modeling tool, so those patterns will be visible when you set the level of detail as a fine level. Generally in the course it will not visible all the patterns, but into the fine level of detail it will be visible all the patterns. So वो भी आप set कर सकते हो by clicking the level of detail. ठीक है, any doubt on this level, how to create a level? और अगर बिलो ग्राउंड करना है, इफ वी कंसिडर 0 एज अ ग्राउंड, बिलो ग्राउंड Need करना है to give बेसमेंट, minus value.
So let's say level, I'll go to the pick line, and if I want below the ground, let's say ki, a PCC. Okay, so let's say 2.5 meters, suppose. Okay, in mm. Simply I will put minus sign like this below the ground level. Okay. Clear? Any doubt? No, Rahul, you can continue. Okay. So once you're done with the level, then you need to create a grids. Okay. So how to create a grid? So grid we can create. So now first thing, why we are creating the grid in any of the Revit file? Okay. So the basic and the important reason, let's say you are working on to the like large building. Okay, and if any incident happen, or you are running suppose a clash test, or you are marking some comments to the project team or the any other members. Okay, how you will identify the particular issue is at what location or where these things are happening. Okay, to understand those things, the grids are important. Okay, let's say ki, for example, like everyone knows the factory. Factories are so big, like starting from the one end, and the another end will be the far away from the from your starting point. So grid will be the always the vertical will be having suppose a one number 1 2 3 4 like this. Okay, and horizontal will be having always a alphabet A, B, C, D. So whenever it will intersect the at the particular location, that particular location will be the A1, A2 or B1, B2. Okay, so based on that, you will identify the locations. So let's say in future, suppose I'm running any class test, or I'm doing the coordination with my project team members, and I want to find suppose I said like into the A1 location you have placed the wrong door or the different type of door. Please review and update it. The other member, he will easily understand, okay, A1 is having into this direction or the into this particular corner. So he will directly go to the particular location. He will just review, okay, the particular door is not valid. So he will replace or change the door type or the door family, and he will update the model. So to understand the entire building area with respect to the proper orientation and the proper shape of the building, we are generally giving the grids. So if you're having a small building or small bungalow, in that case there is no need, or even small apartment, there is no need for the like placing the grid and adding the columns, everything on top of it. But generally for the large or the for the what we can say the major or the bigger projects, grids are must be important. So even for clash test, even for the reviewing, even for markups, everything we need a location, because the person or the project teams, they are very well known about the like location of the grids where exactly it's happening, because sometimes the particular area will be not under the planning scope. Okay, or it maybe depends on the under the condition to condition or the project to project requirement, but into the bigger project grids are more important. Okay, so for placing the grid, so if you click on grid, so here you will have option. So let's say first I'm defining the grid like the horizontal one, and if I want to place like this. Okay, again if you want to maintain the same distance between the two grids, then same option what we did recently, select the grid, go to pick line tool and put the offset value. Okay, at what distance you need a second grid. So let's say 5 meter, 6 meter, we will assume 6 like this. Okay, so automatically it will take the second next number. Okay, so I have placed only one number. So see 1 2 3, automatically it's taking up to the 7. Now
when you are placing the vertical grid, okay, so it will take the number as a 8 because we are continuously creating the grids. So 7 is end here as a horizontal one, but when I'm creating the vertical one, it is showing me 8 number, but I want a alphabet. So just click on that particular grid and here you will have a name option. So select as a B, sorry, A, first alphabet. Okay, then now automatically it will take the like into the sequence A, B, C, D automatically. Go to this one again. Let's say I want to maintain the distance as a 5, suppose. First B, C, D, E, F, G, H, and let's say I. Okay, so this I will add this little bit here, extend somehow like this. So this is your grid kind of a thing. So you need to create a entire grid for the particular project first, then only your modeling will start. Rahul, Yeah. suppose in the model, if I want to add the grid during the modeling, is it possible? During the modeling is also possible, but generally before the modeling only we need to set up these things, because once like whenever you are starting the modeling, then before that we need to link any 2D layout file first. So to Okay. match exactly with the 2D layout, if you have already your grid is ready, then it will be useful. But if you want to add some additional grids during the modeling, that is possible. You can add. Okay. Okay. But the numbering will be in sequence in that case. Yeah, numbering will be in sequence. Suppose if I want to add a grid in between 1 and 2, then the numbering will not change. It will only take 8th, 9th or 10th, whatever the number is. So let's say if you want to add a new grid between 6 and 7. So let's say if I'm adding a grid, the grid number will be the next one. It is not having the any. Then Actually. if you want to add in between that, like 6A or 6B, suppose. Okay, then what you need to do, simply you can add any single grid up to here, and then you can rename. So let's say this is suppose 6A. 6B, 6A, Okay. 6A. like this. That you can do. Okay. 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 Fine. Yeah. Okay, clear how to create a grid, how to rename it. How is this grid gonna help? I mean, it's a dimension to where we can link stuff. Generally, because whenever you are linking any 2D, means AutoCAD file basically, to 2D reference to create a 3D model, so it should exactly match with respect to the AutoCAD file. This is the main purpose for creating this grid. Okay, but for your modeling purpose or for your reference point, you can take a grid as a reference line, and then you can model the like your geometries according to that. It's more important during the column placement. The grid ऑन साइड भी एग्जीक्यूशन जब करते हैं तभी ग्रिड के बेसिस पे ही कॉलम्स का लोकेशन होता है, सो दैट्स व्हाई ग्रिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एम आई राइट? Exactly, or else like everyone knows the center line plan. Okay, how like in which cases we are using the center line plan. It's kind of a thing. It will be working as a center line plan for you. So where you will understand the column placement, where from your like your beam is passing. So if you want to visualize those things are also we can easily understand with respect to the grid. Clear? ओके राहुल, कंटिन्यू. Okay, this is about the your level placing and the grid placing option. Okay, if you have any doubt, you just try from your end, and if you're not able to like doing something wrong, just let me know. Okay, and if you have a laptop open with you, then just share your screen. I will guide you how to do it. Then third option is basic tool. So basic tool, basically here, if you go to the modify panel, because we are not directly jumping onto this wall and everything, wall, so it has the certain
multiple options about the properties, how to place it, layers, and so many things. So when we actually start the our project now, so at that time only I will explain you how to create a wall, how to create a level, layers inside the wall and everything. Okay, so basic tool into the modify panel. These are the certain basic tool we need to we are using to perform some actions during the modeling. Okay, so few tools are like known to you, like move, copy, then offset, which is much more similar to the like AutoCAD only. There is no much more difference. So only the few tools might be you are not knowing. So those only I will explain. Okay, how to use it. What is the significance of a grid? A grid made of one particular level won't be same for the other level. Significance I already told you, why we are placing the grid to just understand the location where exactly we are, and yeah, what exactly which way said like placing of the column, or it will be acting as a center line plan for the particular building or the particular geometry. So your second question is not clear to me. So can you unmute and ask again if possible? Hello? Rahul, I guess he wants to ask whether the grid created on one level would be copied onto the other levels or not, or whether we need to create it for an individual level. I guess that is the doubt as of now. Okay, so if the same question, there is no need for creating the grid on each and every level, because grids are always will be visible on every level. If you want to see, just you need to activate from your visibility graphics options. If you want to see, just go into the visibility graphics, turn on the grid option. That's it. So let's say if I'm going on my level 2, okay, and here also see my levels are grids are visible. If I'm going on level 10, see my grids are visible, because these are the 2D layouts. Okay, this is not only for the level 1 or level 2. Okay, but if you don't want to see on any of the level, simply you need to go to the visibility graphics, press VG, go to the annotation and categories, and here you will find the grid option. Okay, see grid option. So if you turn off this grid, grid will be hide from your model. Okay, this is only for level 1. So if I'm switching my level 2, see my grids are again visible. Whichever the operation you are performing in visibility graphics, that is only applicable with respect to the selected level only. Okay, this is not for the entire project. Okay, the particular operation is only for the selected level. So let's say here you have the multiple options. Model categories means which things you modeled or which things you are creating, like a wall, door, window, everything. Annotations means line, grid, levels, some annotation symbols, whichever, let's say areas mark. If you are in further sessions, we will understand what is the call out or the some tagging, bigging. Okay, all those things comes under the annotation. Analytical means the this is not we are going to learn about. This is a kind of a what we can say in structural analysis. I'm showing a line work, okay, into the different color. So those things comes under the analytical categories. Imported categories. So here you will find the whichever the files you are importing from the other domain. So let's say if I'm importing AutoCAD file here, so that AutoCAD file will be shown me into this imported categories. So right now only the imported families are there. So whenever I'm importing any DWG file, so here you will show me the this file. So whether I want to see this file into this level or not. So if I don't want, then I simply uncheck that particular file name. So I uncheck the box for the particular AutoCAD file. So that particular file will be hide from the respective level. Okay, I hope this is clear. Now about the basic tools. Okay, so basic tool, it means which are the tools available under the modify. Okay, so first option, I told you the two different types of properties in the first sessions, if you remember.
Okay, there are two types of properties we are learning. One is instance properties, second is type properties. Okay, what is the difference between instance properties and type properties? Instance properties are directly irritable and type properties are dependent properties. What does it mean? So let's say I have one object. Okay, let's say I'm putting one door here. I don't have any wall, so I cannot put. I will put one table. So let's say this is my table. Okay, so whichever the properties available on this tab, this is nothing but your instance properties. Let's say level, okay, or the mark, okay, or the any of the like elevation from the level. So these things I can manage only for the this particular object. Okay, I will tell you. So I have created two table here. So if I'm changing the level, okay, I have selected this object. Now I'm changing the level. So if I change the level from first floor to let's say 10th floor, this object will automatically shift. Currently I'm on level 2. Okay, I have placed this object on level 1, but now I change the level as a level 10. So if I'm like going on level 10, I will be visible this object. I can see this object on level 10. Okay, see this particular object is on level 10 because I changed the level, but this object is still on the level 2. Why? Because I have changed only the instance properties. I have not changed the type properties. So if I'm changing the type properties for this particular object, the entire change will happen for all the object. Means similar to this property because this table is also similar and the level 10, this table is also similar. So if I'm changing anything on this particular as a type property, the same changes will be applicable on level 10th table. Okay, how? So let's say I have selected the table. I'm going to the type properties and let's say I'm increasing the width of the table suppose. So let's say I'm putting the 2.5 meters suppose. So let's say I'm changing on level 2. Now you can see width is changed from 2.5 meter. The same width will be changed on level 10 as well. See, But what if I so want to change only one level mein? exactly. Then you have one option that you need to perform. Go to the edit type, make a duplicate for the particular object and change in only on the same level. No need to change onto the, if you are doing the duplicate one, this particular change will be done with respect to that particular level only or that particular type only. Basically duplicate means you're creating a new type for the particular table. You can say, okay, how it is. Let's say for this table, I want to keep as it is. Earlier it is 1.5 meter suppose 1.525 suppose. Okay, so I'll click on this object. I will make these changes 1525 like this. Apply. Okay, now again the same changes will happen into the level 10 as well. But what I want to change only that level 10 object as a 2.5 meter. In that case, what I will do, I will select the object. I will go to the type properties. I will duplicate the particular object. I will rename, let's say table type 2 suppose. Okay, I'm giving some name. Okay, and now I will change. Let's say I will change some bigger value again. See, now if I'm going on level 2 will be the same as it is. There is no change in level 2. Only level 10 is changed because I have created different type directly. So basically it depends on the properties. So if you're making a change into the like original properties, that will be reflected for all other properties, which element having the same properties. So this is nothing but your type properties, and instance properties means this particular change will be applicable only on the same object, not for all. Clear? Yes, no. If no, I will again repeat. Rahul, it is pretty much clear, but can you just tell them the reason why we are doing this particularly? Why we are doing this?
let's say like these are the two Yeah, types of like properties. If you want to make some changes into the object, then you have to go with the duplicate option and then you need to make a new type. yes. So basically, if we only want to change a particular object or a particular element, then we do it like this, right? So that it won't affect Yes. the other elements, right? Okay, no problem. When you actually do it now, like during the modeling, then you will understand much more better, I guess. Because first you need to understand what is this properties. Because when we are creating the wall, then I will explain you the properties related to the wall. Let's say, see these properties. What is the location line based constraint? Basically, based on this only you will understand. So no problem. When like from the next session when we actually start the modeling, then I will again explain you this two types of properties. But just for time being, just under keep in mind there are two different types of properties we are using, and this generally ask in many of the interviews question also. What is the difference between instance properties and type properties? Okay. Rahul, मेरे ख्याल से the example you given, that is a furniture example. But suppose I think the doors, windows, yeah, maybe the wall height somewhere, partition wall, half wall, some kind of a thing. So is it Mhm. possible to make a change for a particular level? I mean, this is what I Actually, understood. no, ma'am, this is depend on the type of properties. Okay, let's say if I'm going for a wall here, time being. I mean, So for on wall, the there are. similar location, we have a door, but I Mhm, mean, all the floors, I want door of height, let's say, for example, 2 meter. But mhm. one of the floor, maybe because of some requirement, it is 2.5 meter. So, Exactly. तो Only वहां for पे, that level, you need to create a duplicate option. That's it. that's what. So there we can use this option, right? Exactly. Oh, Exactly. okay. Okay. Because see, here the table is kind of a door only, or you can consider a window as well. So I have put one table in the level 10 and one table in level 2, but dimension is different. Similarly, let's say you have a 10-story building. So into the all 9 floor, you have a similar type of door, but into the top floor you need to maintain a different type of door. Then only for the top floor you can create a duplicate option. You can create a new type and just give the different dimension. That's it. That new type will be a new family of No, not new doors. family. That's why I'm saying it depends on the properties, because so here we have made change only into the dimensions. But if you want to made some change into the type of the material, if you want to made some changes into the some different parameter. So it depends which type of parameter is available. Let's say if you want to change entirely the different door and that door is not available in your Revit family, then what you will do? Then you need to create a new type of door. That is completely different situation. Okay, No, so not basically like this a family like that. I meant कि अगर 5 फ्लोर्स पे एक टाइप का दरवाजा और 5 फ्लोर्स पे अलग टाइप का दरवाजा रखना है then तो फिर you need to create a two different type of this one, two different types. And जैसा आपको जो फीचर लेंथ विड्थ चाहिए पहले 5 फ्लोर के लिए उसको ओ दे दो, और लेट से कि ऊपर वाले 5 के लिए डिफरेंट चाहिए तो सेकंड टाइप के डोर के लिए ओ वाला पैरामीटर दे दो. एंड देन हाउ डू आई एक्सेस कि वो वाला डोर टाइप 1 वाला कहाँ लगाना है पे कि रहे टाइप 2? एग्जैक्टली हाँ, तो ओ वाला यहाँ पे मिलेगा. सो लेट से कि मैंने अभी आप यहाँ पे ये टाइप सिलेक्टर होता है ना, so यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैंने एक नया टाइप बनाया था टेबल टाइप 2, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सो अगर मैं इसको चूज करूंगा तो ओ वाला आ जाएगा, और अगर फर्स्ट को मैं चूज करूंगा तो जो मेरा डिफॉल्ट है ओ वाला आ जाएगा. सो जो भी टाइप्स आप वहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ना, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे कौन सा टाइप है. तो सिंपली आपको यहाँ से टाइप चूज करना है और वहाँ पे प्लेस करना है. कहाँ पर एग्जैक्टली मॉडिफाई में मिलेगा मुझे ये? मॉडिफाई में नहीं मिलेगा. सो जो भी कमांड आप एक्टिवेट करते हो ना, तो लेट से कि मैंने अभी मेरा जो एक कमांड था टेबल वाला, ये मेरा प्लेस कंपोनेंट था. तो जैसे ही आप वो कमांड एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे ए फर्स्ट टैब आता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप सिलेक्टर. टाइप सिलेक्टर को अगर आप ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप मिलेगा उसका, जो भी आपने लेट से कि आपने 3 टाइप्स बनाए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो जितने भी आप टाइप्स बनाओगे वो सारे टाइप्स आपको यहाँ पे एनलिस्ट हुए दिखेंगे. ओके जी. क्लियर? राहुल, एक वॉल प्लेस करके दिखा सकते हैं क्या? एक 150 और एक 300 का एक वॉल बना के दिखा दीजिए ना, बेटर आइडिया आएगा. ओके, सी लेट से कि अब यहाँ पे वॉल है, तो लेट से कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मल्टीपल ऑप्शंस है. सी इफ यू सी ना,
300 का है, 200 का है, बट मुझे मेरा यूनिक चाहिए कि अभी ये इमेजिनरी वाला है ना, तो इसके मुझे 2 टाइप्स बनाने हैं, एकदम सिंपल मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके मुझे 2 टाइप्स बनाने हैं। सो सबसे पहला टाइप जो बनाना है उसमें मुझे मेरा थिकनेस रखना है 300। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो मेरा फर्स्ट है ना उसको मैं 300 का बनाता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट में जाता हूँ, तो यहाँ पे बोलता हूँ कि टाइप 1 वॉल, इसका है 300 सपोज। सो मैंने इसको क्रिएट किया एंड मैं इसमें जाके चेंज करूंगा 300। ओके ओके, ये वाला मेरा एक फर्स्ट टाइप बन गया। और एक मुझे चाहिए, मैं उसको भी एक डुप्लीकेट बना दूंगा, इसको मुझे बनाना है 150 का सपोज। सो मैं यहाँ पे 150 मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा अंदर जाके, नहीं तो सिर्फ नाम अगर आप चेंज करोगे तो उसका थिकनेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज में चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके नाउ मैंने 2 टाइप्स बनाएंगे। जो भी 2 टाइप्स मैंने अभी बनाए हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, मैंने जैसे बोला कि टाइप सिलेक्टर को अगर आप एनलार्ज करोगे या फिर इसको इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको 2 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और उसका स्ट्रेट अवे डिफरेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मेरा 150 वाला वॉल है और ये मेरा 300 वाला वॉल है। सी थिकनेस। एंड इसे हम ये ग्रिड को 3D में देख सकते हैं वैसे? यस यू कैन सी दिस इज योर ग्रिड। इसी ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं ना जो हम लोगों ने निकाला है। जी। वो जो यस वॉल है वो कितने लेवल्स के बीच में, 1-2 लेवल्स के बीच में है कि और ज्यादा? ये जो हम लोगों ने जो अभी प्लेस किया वो वाला बोल रहे हो? जी जी जी। नहीं, हाँ इसका आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ पे एंड करना है, कितना हाइट देना है, कौन सा मटेरियल देना है, वो सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो। वो आपको खाली, मैंने अभी लेवल 10 के ऊपर जाके निकला था डायरेक्टली, तो इसलिए मुझे 3D में वो एकदम टॉप में दिख रहा है, वो मुझे ग्राउंड में नहीं दिख रहा है, बिकॉज लेवल 10 मेरा टॉप में रहेगा ना। मैंने लेवल 10 पे प्लेस किया था, तो 10 से ऊपर जितना हाइट है उतना आपको ऊपर दिख रहा है। इसलिए अगर लेट से मैंने लेवल 1 पे जाके और एक सेम वॉल अगर प्लेस करता हूँ, एक छोटा रूम यहाँ पे निकलता हूँ काइंड ऐसे स्क्वायर में, तो अभी आप अगर आप 3D में जाओगे तो यहाँ पे आपको लेवल 1 में रूम दिखेगा, जैसे ये वाला। ओके, और ये जो ग्रिड आपने अभी हमें नीचे दिख रहा है, वैसा एक स्टैंडिंग ग्रिड भी हम सेट कर सकते होंगे ना? स्टैंडिंग ग्रिड मींस लाइक लेवल वाइज? जी जी जी। कि नहीं, वो लेवल वाइज ग्रिड आप सेट नहीं कर सकते। ओके ओके, हाँ मतलब उसका शायद कोई सेंस नहीं है, वो उसका नीड नहीं बिकॉज होगा। एनी वे इफ यू आर गोइंग ऑन एनी ऑफ द लेवल एंड इफ यू आर स्विचिंग ऑन टॉप फ्लोर, सो ग्रिड आपको दिखना ही है, सो देयर इज नो नीड टू लाइक सेट एज अ फ्लोर वाइज। नहीं, बट आपको ग्रिड भी कैसा, आप ऐसे ऊपर से देख रहे हो ना ग्रिड को? अगर आपको सामने ग्रिड, मतलब अभी ग्रिड हॉरिजॉन्टल है, ग्रिड को वर्टिकल कर दिया। लाइक ऐसे वर्टिकल बोल रहे हो? हाँ हाँ, यस हाँ उसको। जैसे प्लान में ग्रीड का हेल्प हुआ वैसे वर्टिकली फ्रॉम ग्रीड। हाँ, तो अगर आपको वैसे हाँ वैसे सेट करना है ना, लेट से कि आपको आप बोल रहे हो कि ये देखो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये वर्टिकल पैनल दिख रहा है आपको, एक हाईलाइट हुआ। मुझे डायरेक्टली इसी वर्क वर्क प्लेन पे कुछ ड्रॉ करना है ना, तो मैं डायरेक्टली इसको एज अ वर्क प्लेन सेट कर सकता हूँ। मतलब ग्रिड का जरूरत नहीं, मतलब ग्रिड यहाँ पे मैं अगर चाहिए तो आप उसको मूव भी कर सकते हो, बट अननेसेसरी अगर आपको सिर्फ इसी वर्क प्लेन चाहिए ना कि इसके ऊपर कुछ काम करना है आपको लेट से, तो आइदर वन वे क्या है, डायरेक्टली एक जो लेवल है वो लेवल के ऊपर चले जाओ और वहां पे आप कुछ मॉडल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको 3D में ही करना है तो यहाँ पे आपके पास वर्क सेट का ऑप्शन मिलता है, सेट एज अ वर्क प्लेन। तो जो भी मैं लेवल सेट करूंगा ना, तो उस वो पर्टिकुलर लेवल एज आपका वर्क सेट करे आपका क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर मैं 3D एनवायरनमेंट में ही डायरेक्टली जो भी मॉडल करूंगा वो ऑटोमेटिकली उसी लेवल के ऊपर उसी वर्क सेट के ऊपर मॉडल हो जाएगा। ओके ओके, यस सर। या रीजन कि वर्टिकल ग्रिड नहीं दिख रहा है, बेसिकली हम लोग 3D मॉडल का जो भी व्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं करते, ये सिर्फ व्यूइंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो नो डाउट, बट वी डोंट ड्रॉ इन दिस व्यू। जो आपको ऑर्थो या 3D व्यू आप बोलो ना, जो दिख रहा है ना सामने, वी डोंट ड्रॉ इन दैट व्यू। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए जो ग्रिड्स आपको दिख रहा है ना वो यूज होता है,
बाकी आपका मेन ग्रिड का पर्पस और जो यूज है that would be only when you use it in the levels, that is in the 2D floor plan, that's it, because you don't use that in the 3D part. एग्जैक्टली, बिकॉज 3D में ओके जनरली ओके। कोई और भी काम हम लोग सोचा करते वो ही नहीं है। ग्रिड मतलब अंदर इंटीरियर के लिए भी वो ग्रिड यूज कर सकते हैं हम कि इतने साइड से इतना हम स्पेस लीव करके ऐसे कुछ प्लेस करना होगा या कुछ, बट उसके लिए Yes. ग्रिड का नेसेसिटी नहीं है आई थिंक सो। नहीं नहीं, इंटरनल के लिए कोई भी यूज नहीं है, जस्ट सी ग्रिड का यूज जो जैसे मैंने यूज बोला था ना, एक दो यूज है, लाइक फर्स्ट यूज लाइक योर कॉलम पोजीशन एंड योर लाइक एज सेंट्रल लाइन प्लान। सेकंड इज टू आइडेंटिफाई आपका बिल्डिंग के में अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे है। मैंने जैसे बोला कि फैक्ट्रीज जो होती है ना वो काफी बड़े लेवल पे लाइक लार्ज स्केल में रहती है, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना एग्जैक्टली आपको समझना नहीं है कि कहाँ पे है वो प्रॉब्लम। तो वो एक आइडेंटिफाई लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। इवन वो कॉलम प्लेसमेंट वगैरह स्ट्रक्चर के लोगों के लिए जब वो स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग का वर्क, तो एनीवे आपको इसका ऑटोकैड का प्लान तो इंपोर्ट करना ही है, तो उसमें सब कुछ रहता ही है। तो वो भी यूज है नहीं प्रॉपरली अगर देखा जाए तो। ओके, सो मेजर यूज इज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, बिकॉज रेविट में आपका 2D का ग्रिड कुछ काम का नहीं है, और वो ना भी इसमें वर्क हो पाएगा। इवन अगर मैं नेविशवर्क में इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सपोर्ट करूंगा तो भी आपका 2D लेआउट कुछ वर्क मतलब उसका कुछ काम नहीं आएगा। जो भी एक्सपोर्ट होगा इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ओनली बेस्ड ऑन द रेविट ग्रिड ही होगा। सो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोला टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आता है। सेकंड, विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप किसी का रेफरेंस ले रहे हो मॉडलिंग करते वक्त या फिर कॉलम प्लेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर पॉइंट, तो ये एडिशनली उसके बेनिफिट्स है जो आप यूज कर सकते हो। ओके 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 सर, राइट। ओके, सो ये था आपका टाइप और इंस्टेंस के बारे में, और फिर अभी हाँ हम लोग उसी में थे शायद अभी तक। ओके, सो यहाँ पे आपको होता है कि टाइप प्रॉपर्टीज, देन योर नॉर्मल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग जनरली इंस्टेंस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, यहाँ पे है कि लाइक पेस्ट अगर आपको कुछ करना है, और यहाँ पे आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। सो कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि हम लोगों ने बोला कि लेट्स से कि मेरा 50 या फिर 100 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो मे भी हो सकता है ना कि टिपिकल फ्लोर रहेगा, हर एक फ्लोर अलग अलग तो नहीं रहेगा। लेट्स से कि मान लो फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK है सारे, सेकंड में 2 BHK है, थर्ड में 3 BHK, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आइदर अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेंगे या फिर थ्रू आउट द फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सेम फ्लोर रहेगा। तो लेट्स से सर अगर वैसा आपने पॉसिबल नहीं होता है क्या कि बिल्डिंग को डिफरेंट स्ट्रक्चर दे हर एक फ्लोर पे? नहीं दे सकते हो, आपको मैं क्लिप कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन क्यों बता रहा हूँ। लेट्स से आपका सेम स्ट्रक्चर है फ्रॉम वन लेवल टू टॉप लेवल, तो आप हर एक लेवल में मॉडल तो नहीं करते बैठोगे ना सेम चीज, इतना टाइम तो हमारे जी। पास है नहीं। तो अगर आपको सेम स्ट्रक्चर जो लेवल 1 पे है वो अगर आपको रेप्लिकेट करना है लेवल 2 पे, लेवल 3 4 5 6 XYZ जो भी है आपका टॉप लेवल, तो उसमें सिर्फ एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। द एंटायर मॉडलिंग जितना भी आपने फर्स्ट लेवल में किया है विद लेवल ऑफ डिटेल, सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली विद इन अ सिंगल क्लिक रेप्लिकेट हो जाता है अबव लेवल। जो मैम ने और एक बार मोस्टली पूछा था हम ना कि ऐसा हाई राइजेस में हमें ऐसे कॉलम का लेंथ बस बदलना होता है ना वैसे? एग्जैक्टली तो काइंड ऑफ थिंग लेट्स से अभी में भी हो सकता है कि रूम स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है ना, लेट्स से कि मेरा फर्स्ट में अलग है और थर्ड में अलग है सपोज, मतलब हेलो Yes, Rahul, you're audible now. या सॉरी। सो मैं बोल रहा था कि अगर ऑड इवन कंसेप्ट अगर होते हैं ना बिल्डिंग में, तो उस केस में आप हर एक लेवल में मतलब इवन इवन लेवल में जाके आप सेम मॉडलिंग नहीं कर सकते ना, तो उसके अगर आपको सेम स्ट्रक्चर कॉपी करना है इवन फ्लोर में, तो आपको एंटायर ज्योमेट्री मतलब वॉल वगैरह जो भी आपने मॉडल किया है सब कुछ सिलेक्ट करना है जस्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड में। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि लेवल 10 है, ओके, सो मैं क्या करता हूँ आपको करके दिखाता हूँ मैं। सो ये वाला जो मैंने निकाला है ना, सो मतलब ये वाला वॉल सपोज, ग्राउंड फ्लोर पे है और इसका टॉप मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, लेट्स एज्यूम करता हूँ मैं।
ओके इतना मेरा वॉल है। अभी ये मुझे थ्रू आउट सेम सारे लेवल के लिए चाहिए, तो मैं इधर मेरे पास दो ऑप्शन क्या है, मैं डायरेक्टली इसको मेरा बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड बोलूंगा और टॉप डायरेक्टली टॉप कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वैसे भी वो बढ़ी जाएगा, बट वो थ्रू आउट दिखेगा, लेवल वाइज उसको स्प्लिट नहीं करेगा, बट मुझे लेवल वाइज स्प्लिटिंग के हिसाब से चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई सिंपली सिलेक्ट दिस ऑप्शन। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, सो मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कॉपी हो गया। नाउ पेस्ट एंड अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, तो मुझे ये एग्जैक्टली कहाँ पे अलाइन करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लेवल आते हैं, तो मेरा था ये ग्राउंड पे, तो मुझे फर्स्ट से लेके 10 तक चाहिए, उसमें ग्राउंड मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, सॉरी। फर्स्ट पे चाहिए ग्राउंड पे और 11 पे चाहिए, और इसको मैं सिंपली ओके करूंगा। मैं 12 नहीं ले रहा बिकॉज मेरा 12th लेवल मतलब मेरा माइनस में है, बिकॉज मैंने यहाँ पे वो माइनस लेवल में क्रिएट किया था, तो उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो जिसके जैसे मैं इसको ओके करूंगा, सेम स्ट्रक्चर देखो रिप्लिकेट हो जाएगा लेवल के लिए एंटायर थिंग। तो अभी ये खाली मैंने 4 वॉल सिलेक्ट करके किया था, बट अगर आपके पास पूरा फ्लोर ही है ना, उसमें आपके टाइल्स लगाए रहेंगे, फर्नीचर रहेगा, पूरा एंटायर सेटअप क्लियर। राहुल आपका आवाज चली गया था। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, कैन यू प्लीज हाँ रिपीट अगेन? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पे देखो पूरा मैंने लेवल टू लेवल यहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है। सो अगर आपको इसको कॉपी करना है विद इन सिंगल एक सिंगल क्लिक में एंटायर लेवल के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। राहुल, अगर यस मल्टीपल लेयर, मल्टीपल फ्लोर, टिपिकल फ्लोर लाइक सेम टाइप ऑफ इंटीरियर और मे बी द इंटरनल वॉल, सो एक फ्लोर डिटेल में क्रिएट करो और उसके बाद फिर वही कॉपी करो, समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके, तो एक को पूरा ही डिटेल में क्लियर कर दो एंड देन यू कैन पूरा गो फॉर डिटेल द में क्रिएट कर मल्टीपल। दो ओके, मल्टीपल। यस, ठीक है। सो ये आपके थे ऑप्शंस कॉपी टू क्लिपबोर्ड। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है लाइक जॉइन, देन कट। सो बेसिकली ये जब रूफ के लिए थोड़ा बहुत इसमें यूज आएंगे। ओके, सो ये अभी हम लोग नहीं कवर करते हैं। सो डायरेक्टली ये मॉडिफाइड टूल में बता देता हूँ। सो इसमें है कुछ स्प्लिट फेस है, देन पेंट कैसे अप्लाई करते हैं, मटेरियल। सो ये जब मटेरियल क्रिएशन वगैरह हम लोग देखेंगे तो उसमें जनरली ये हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है। मॉडिफाई में फर्स्ट ऑप्शन होता है अलाइन। सो लाइक अलाइन मतलब कोई भी अगर चीज मुझे एक चीज के साथ अलाइन करनी है, लेट्स से कि ये टेबल है। ओके, सो ये टेबल मुझे एग्जैक्टली इस वॉल फेस पे अलाइन करना है या फिर इस वॉल फेस पे अलाइन करना है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। सो लेट्स से मैं अलाइन पे के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मुझे अलाइन एग्जैक्टली कहाँ पे करना है पहले, तो लेट्स से जिस वॉल पे करना है पहले वो वाला आप सिलेक्ट कर लो। सो लेट्स से मैं यहाँ पे मुझे करना है लेट्स से, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और अभी कौन सा ऑब्जेक्ट करना है, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट करना है, तो मैं इस ये पर्टिकुलर फेस इसके साथ अलाइन होना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो सी ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके एग्जैक्टली इस चीज के साथ अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब भी कोई अलाइन करते हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हो ना, तो वो मूव होने के बाद यहाँ पे आपको एक लॉक का सिंबल दिखाता है। सो बेसिकली लॉक का सिंबल का मीनिंग क्या होता है, अगर आप मैं इसको लॉक करता हूँ ना, तो ये इस पर्टिकुलर एज से या फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आप इसको कितना भी मूव करेगा तो ये हटेगा नहीं। अगर मैंने टेबल भी मूव किया तो ये ग्रिड भी मूव होगा। तो ऑलवेज जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करते हो तो बेटर है कि आप उसको उस पर्टिकुलर चीज के साथ लॉक कर दो, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। सो सिमिलरली अभी मुझे ये मैंने फर्स्ट फेज अलाइन किया, सेकेंड फेज मुझे सपोज यहाँ पे अलाइन इस एग्जैक्टली इस कॉर्नर में इसको बिठाना है। सो अगेन आई विल सिलेक्ट द अलाइन, सिलेक्ट द फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस। सी एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर कॉर्नर में इसको मैंने अलाइन कर दिया, तो ऐसे आप इसको अलाइन कर सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन होता है ऑफसेट, सिमिलर टू द जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बोला था ऑटोकैड में जैसे ऑफसेट होता है कि ये वॉल है एग्जैक्टली एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर मुझे सेम वॉल चाहिए सपोज, तो मैं एक वॉल सिलेक्ट करूंगा, ऑफसेट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड
कितना डिस्टेंस चाहिए, लेट्स से कि 5 मीटर, और वॉल को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो एग्जैक्टली 5 मीटर के बाद सेम वॉल मेरा क्रिएट हो गया। सो अगर आप मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ 5 मीटर, ओके। देन मिरर टू पिक एक्सिस एंड मिरर टू ड्रॉ एक्सिस है। सो सेम चीज अगर आपको एग्जैक्टली अपोजिट साइड में अगर चाहिए आपको, लेट्स से कि यही यही मुझे टेबल है ना, ये इस साइड भी चाहिए। सो इधर आप कॉपी भी कर सकते हो, बट सेम इंस्टेंस के ऊपर या फिर सेम डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, लाइक मिरर इमेज और समथिंग, तो आप यहाँ पे एक ड्रॉ होता है। अगर आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली कहाँ पे ड्रॉ करना है, आपके पास राइट से कि एक डिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करो, उसके बाद एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो क्रिएट हो जाएगा। या फिर एक्सिस पिक कर लो अगर आपके पास पहले से ही एक्सिस है। सो लेट से कि मैं मान के चलता हूँ कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये मेरा एक्सिस है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पिक एक्सिस बोलता हूँ। सो ऐसे करूंगा और ये वाला एक्सिस में पिक करूंगा। सो ऑटोमेटिकली सी एक्सिस मैंने पिक किया तो एग्जैक्टली सेम एक्सिस के ऊपर है, इस साइड मेरा टेबल क्रिएट हो गया। बट अगर मुझे ड्रॉ करना है, ओके, एग्जैक्टली कहाँ पे है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों भी टेबल सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों का मुझे मिरर करना है, ओके। देन मैं ड्रॉ एक्सेस करता हूँ। सो ड्रॉ एक्सेस अगर मैंने किया ना, तो मेरे पास फिजिबिलिटी कि मैं कहाँ से मुझे ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली यहाँ से पिक करना है, यहाँ से पिक करना है, कहाँ से। सो मैं मान के चलता हूँ कि मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ वॉल है ना, ये यहाँ से मुझे पिक करना है, जो हाईलाइट हो रहा है डैश डैश लाइन में। सो इसको मैं पिक करूंगा लाइक दिस। तो सेम डिस्टेंस जहाँ पे इतना डिस्टेंस है ना, वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे वो छोड़ेगा और एग्जैक्टली यहाँ पे वो मेरे दो टेबल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एज अ मिरर एक्सिस में। Okay? Then यहाँ पे कुछ मूव टूल है, लाइक कैसे मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये सबको पता रहेगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, मूव करो, बेस पॉइंट दे दो कहाँ से मूव करना है। सो यहाँ से मुझे मूव करना है और कितना डिस्टेंस मूव करना है उसको, ओके। सो लेट्स से 2 मीटर, तो इसको 2 मीटर, तो वो उतने डिस्टेंस से मूव जाएगा। सिमिलरली कॉपी भी है, कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कॉपी करो, डिस्टेंस दे दो, खत्म। सिमिलरली रोटेट, ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करना है 45 डिग्री में वगैरह, सो रोटेशन दे दो, कितना रोटेट करना है, लेट्स से कि इस पर्टिकुलर एंगल से ऐसे मुझे 45 करना है। सो कितना करना है 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। सो 45 डिग्री में इसको रोटेट कर दो एंगल को। ओके, अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे लॉक है। मैंने बोला था ना कि आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करो तो, बिकॉज यहाँ पे मैंने अलाइन करके इसको लॉक किया था, तो ये मुझे फर्स्ट अनलॉक करना पड़ेगा एंड देन मुझे वो एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। 45, सी 45 में वो रोटेट हो गया। देन समहाउ कुछ ऑप्शंस आपके पास है, जैसे ऑटोकैड में आपके पास ट्रिम होता है, तो यहाँ पे भी ट्रिम है, लेकिन यहाँ पे ट्रिम के कुछ मल्टीपल मोड्स है। आप बोल सकते हो कि ये है ट्रिम एंड एक्सटेंडेड टू कॉर्नर, ट्रिम एंड एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट, या और यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स है। सो मल्टीपल मतलब एक ही साथ आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हो। सो लाइक मल्टीपल वेज में आप आपको जब ट्रिमिंग करना है तो ये वाला आप ऑप्शन यूज करो। और सपोज आपको कॉर्नर शेप में चाहिए, सो लेट्स से ये वाला ऑप्शन है मेरे पास, और ये वाला वॉल ऐसे कुछ आपने ड्रॉ किया है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मुझे सिर्फ इसको ए वाला और ए वाला रखना है, ए वाला निकाल देना है, मतलब ये जो जितना पोर्शन आगे गया है ना उसको मुझे कट करना है, तो कट करने के लिए मैं ऑलवेज ऐसा तो नहीं करते बैठूंगा उसको पीछे खींचूंगा वगैरह। सो मुझे क्या करना है, सिंपली ट्रिम ऑप्शन, मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि जिसमें मैं जो ऑब्जेक्ट्स आपको रखने हैं उसके ऊपर आप क्लिक करो, ऑटोमेटिकली सेम चीज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स है। ऑटोकैड में हम लोग क्या करते थे, जो ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है उसी के ऊपर क्लिक करना पड़ता था, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता था। बट यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे जो आपको निकालना है ना उसको आपको छूना भी नहीं है, जो आपको रखना है उसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट से मैंने क्या बोला था कि मुझे ये जो एक्सटेंड हुआ है वो निकालना है। सो मैं सिंपली ए वाला लाइन सेलेक्ट करूंगा और ए वाला वॉल सेलेक्ट करूंगा, तो आगे वाला एग्जैक्टली ट्रिम हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन था। क्लियर? सिमिलरली सपोज यहाँ पे और एक वॉल रहेगा
ऐसे कुछ, तो यार यहाँ पे ऐसे कुछ रहेगा। ओके, तो आपको एग्जैक्टली कौन सा रखना है, ए वाला फेज रखना है कि ए वाला फेज रखना है। तो वो भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो मुझे लेट्स से कि मुझे ए रखना है, एंटर यहाँ से लेके यहाँ तक रखना है। सो ये क्या करेगा, ए वाले दो डिलीट कर देगा। मैंने ए वाला और ए वाला पैटर्न सिलेक्ट किया था तो ए वाला रिमूव हो गया। ओके, अभी ए वाला और ए वाला सिलेक्ट किया तो ए वाला रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स से दिस एंड दिस। ओके, ये तो डिफरेंट, ये कंबाइन ऑब्जेक्ट है नहीं। सो पहले तो आपको इसको कंबाइन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कंबाइन नहीं दिख रहा है। सो ट्रिमिंग कब होता है कि जब कंबाइन ऑब्जेक्ट रहेगा तभी। क्लियर? ओके, सो देन यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, स्प्लिट एलिमेंट ऑप्शन और द स्प्लिट विद द गैप। ओके, सो स्प्लिट विद द गैप जो ऑप्शन होता है, अगर आपको वॉल में कुछ कैविटी वॉल के लिए सपोज जो गैप वगैरह था ना, वो अगर आपको यहाँ पे कुछ देना है, सो स्प्लिट विद द वॉल अगर करोगे ना, सो एक स्लाइड सा गैप यहाँ पे इन दोनों वॉल के बीच में क्रिएट हो जाता है। सो सी, ये वॉल एक गैप तैयार होगा इसमें, स्लाइड। ओके, और अगर दो वॉल्स है जो कि यहाँ पे देखो भी ये कनेक्टेड वॉल है। ओके, सो मान के चलो कि ए वाला अलग रूम है, ए वाला अलग रूम है, इसमें आपको अलग कलर देना है, इसमें अलग कलर देना है, तो लेकिन वॉल तो इंडिविजुअल है। तो आपको अगर मतलब जब आपने मॉडलिंग किया था तो आपने स्ट्रेट अवे वॉल प्लेस किया था। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे इसके ऊपर पर्टिकुलर वॉल के ऊपर कोई भी मैं पेंट अप्लाई करता हूँ तो पेंट थ्रू आउट द वॉल जाएगा। वाई? बिकॉज एक सिंगल एंटिटी है। ओके, सो कैसे सिलेक्ट किया मैंने, ओके, सो लेवल 1 पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा ओके, सो यहाँ पे ये जो वॉल है ये कंटिन्यू वॉल है। ओके, सो इसको मैं 3D में अगर जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी मैं अगर पेंट अप्लाई करता हूँ तो जो इस फेस पे आएगा ना वो सेम इस फेस पे आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ये कंटिन्यूस वॉल है मेरा, उसको मैंने कहीं पे ब्रेक नहीं किया है। तो आप ओनली फॉर द कलर चेंज और द ओनली फॉर द लाइक सम स्मॉल मॉडिफिकेशन आप पूरा वॉल तो डिलीट नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स से कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं पेंट अप्लाई कर रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग। सी, जो यहाँ पे दिया मैंने वो यहाँ पे दिया सब, बट मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। सो वो कैसे मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, तो एग्जैक्टली जो जॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यूज करूंगा, स्प्लिट वॉल। ओके, स्प्लिट वॉल अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से वो वॉल ब्रेक हो जाएगा। ये वाला पार्ट अलग दिखाएगा, ये वाला पार्ट अलग दिखाएगा। तो लेट्स से स्प्लिट विद द वॉल मैं करता हूँ एंड एग्जैक्टली ऑन द सेंटर पॉइंट इसको मैं ब्रेक करता हूँ। ओके, नाउ अगर मैं 3D में जा जाता हूँ एंड लेट्स से सी दिस इज अ डिफरेंट वॉल, दिस इज अ डिफरेंट वॉल। So now if I want to apply some different material on the same face, I can change. See, यहाँ पे different हो गया, यहाँ पे different हो गया. So this is how you can use the split with the wall option and split with the gap. So gap अगर आपको cavity wall के लिए कुछ minor gap वगैरह आपको रखना है in your model, तो आप वो भी कर सकते हो. Okay, and यहाँ पे कुछ options है like array. array मतलब similar to AutoCAD में जो array होता है ना कि multiple सेम साइज का कंपोनेंट आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में चाहिए, तो नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ आइटम्स में चाहिए मल्टीपल वे में, तो वो कितनी बार चाहिए तो आप उसको एरे कर सकते हो।
ओके, आइदर लीनियर, रेडियल, जैसे आपको चाहिए और जो भी वे में। ओके, तो एरे आपको यूज कर सकते हो। लेट्स से कि मैं सपोज इस लाइन का एरे कर रहा हूँ, सो एरे मैंने किया और आपको कितना नंबर चाहिए, ओके, उस पर्टिकुलर एरे के। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 10 नंबर चाहिए, सेम वॉल 10 टाइम रिपीट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैं फिर मूव टू सेकंड करूंगा या फिर डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन दूंगा। तो मतलब इतने नंबर में, मतलब इसको मैं करता हूँ यहाँ तक, तो इन बिटवीन मेरे पास 10 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली फर्स्ट टू लास्ट चूज किया, तो उसके अंदर मुझे कितने चाहिए थे, 10 चाहिए थे, तो ऑटोमेटिकली 10 आ गए। बट अगर मैं सेकंड करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में आपको कितने चाहिए वो आप चूज करो एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट चूज कर रहा हूँ, उसके इन बिटवीन दिस टू आपको कितने कितने चाहिए, तो उसके पास आपको एक नंबर ही ऑप्शन है। बट अगर मैं सेकंड करता हूँ सेम केस के लिए, लेट्स से इसको फिर से डिलीट करेंगे, चूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, अगेन गो टू द एरे एंड नाउ सेकंड। सो अभी सेकंड में कितने नंबर चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 5 चाहिए। सो फर्स्ट में एक डिस्टेंस आप फिक्स करो, इसी डिस्टेंस के बाद में 5 और क्रिएट हो जाएंगे 2. सो इसका जो डायमेंशन रहेगा ये यूनिक रहेगा एट साइज। ओके, सो यहाँ पे अगर आप चेक भी करोगे, सो एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको जब काम करना है तो ऑलवेज यूज द यूज द सेकेंड ऑप्शन। ओके, और अगर आपके पास डिस्टेंस फिक्स है और उसे सेम डिस्टेंस में आपको नंबर ऑफ एरेस चाहिए, नंबर ऑफ काउंट चाहिए, तो आप लास्ट ऑप्शन यूज करो। सो ये दो ऑप्शंस बेसिकली होते हैं एरेस क्रिएट करते वक्त, तो आप यूज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। एंड लास्ट होता है कि स्केलिंग के लिए। सो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको स्केल करना है सर्टन इसमें, तो आप वो स्केल कर सकते हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। सो स्केल फैक्टर आपको एक देना पड़ता है। लेट्स से कि इस वॉल है, इसको मुझे स्केल करना है, सो मैं इसको स्केल करूंगा और कितने से स्केल करना है आपको यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा, तो वो स्केल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेजर के कुछ डायमेंशन है, लाइक जैसे हम लोग डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं ना, सेम काइंड ऑफ अलाइन डायमेंशन है। यहाँ पे मेजर करना है तो मेजर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग और लाइक क्रिएट असेंबली, क्रिएट पार्ट्स और क्रिएट ग्रुप। ओके, सो ऐसे कुछ ऑप्शन है, मतलब मल्टीपल कंबाइन का आपको एक कुछ ग्रुप बनाना है तो ग्रुप ऑप्शन यूज करो। कोई कोई ऑब्जेक्ट अगर कंबाइन है, लेट्स से कि मैंने बोला ना कि वॉल है, वॉल में मल्टीपल लेयर्स है, पहला ब्रिक होता है फिर प्लास्टर पेंट, तो अगर आपको उसको एक एक्सप्लोर्ड व्यू में अगर देखना है तो क्रिएट पार्ट्स में अगर आप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा पर्टिकुलर वॉल, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल लेयर्स है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि क्रिएट असेंबली, असेंबली इन द सेंस लेट्स से कि मल्टीपल ड्राइंग्स या फिर मल्टीपल टैगिंग एलिमेंट्स आपके पास है, ओके, तो उसको एक कंबाइन असेंबली बनाना है। इट्स सिमिलर टू ग्रुप ओनली। ओके, जैसे ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक ऑब्जेक्ट का होता है, बट असेंबली क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में जनरली बोलते हैं कि पार्ट्स और असेंबली। सो पहले पार्ट्स एक इंडिविजुअल होता है सिंगल सिंगल, और जब पार्ट्स कंबाइन करते हैं तो एक असेंबली बनता है। तो सेम वे में यहाँ पे क्रिएट असेंबली का ऑप्शन है जो कि आपको मल्टीपल पार्ट्स को कंबाइन करके एक इंटर ऑब्जेक्ट बनाता है, जो कि एज अ प्लेस करते वक्त मैं असेंबली करके प्लेस करूंगा। बट ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में भी हो सकता है कि आपने तीन अलग सेम चीज का एक ग्रुप बनाया, अगेन तीन सेम चीज का एक ग्रुप बनाया, बट असेंबली में सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसका आपने एक छोटा सा पार्ट बनाया। मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल अलग अलग एलिमेंट्स लगते हैं ना, उसके बाद वो एक पार्ट एक ये बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो होता है आपका असेंबली। सो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिएट असेंबली में, क्रिएट ग्रुप में और क्रिएट पार्ट्स में। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? हेलो? Yeah, I mean, this commands are basically like kind of what we use in the AutoCAD software, no? Yes, majorly like most of the commands you
already knows about like this trimming option, some grid, like then array. So most of the commands are almost similar to the AutoCAD only. There is no much more difference. Okay. Now moving to the next, how we can place the column. So, okay. So अभी हम लोगों ने जो grid निकाला था ना, so let's say कि मुझे column place करने हैं. Okay, on the same grid. So अभी मैं column कैसे place कर सकता हूँ same grid के ऊपर. Okay. So column place करने के लिए if you go to the architecture, go to the columns. So column में दो options है. Okay, so we are learning only the architecture, not structure one. Okay, so जब structure column place करेंगे तो directly आपको structure में के actual column आप place कर सकते हो, either steel column और RCC column. बट लेट्स से आर्किटेक्चर में जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ अगर प्लेस कर रहे हैं तो मैं यूज करता हूँ रेक्टेंगुलर कॉलम. तो अगर मुझे पता नहीं ना एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे मेरा कॉलम पोजीशन आएगा. ओके, वो कब होता है जब आपने आर्किटेक्चर प्लानिंग दिया है, देन स्ट्रक्चर इंजीनियर जब उसके ऊपर स्ट्रक्चरल डिजाइन करता है तो कॉलम पोजीशन और बीम पोजीशन मतलब कॉलम पोजीशन फाइनल हो जाता है. ओके, लेकिन अगर मैं जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ मैं प्लेस कर रहा हूँ तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि जितने भी इंटरसेक्शन मेरे पास है, अगर मुझे सारे इंटरसेक्शन में कॉलम प्लेस करने हैं, ओके, तो आपको विद इन वन क्लिक आप प्लेस कर सकते हो सारे इंटरसेक्शन पे. तो आपके पास ऐसा एक ऑप्शन भी है. बट अगर नहीं, आपको वैसा नहीं करना है, आपको वन बाय वन ही जाना है, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर वन बाय वन आप कॉलम प्लेस कर सकते हो लाइक दिस. लेट्स से कि यहाँ पे मुझे प्लेस करना है फर्स्ट कॉलम. ओके, देन अगर मैं 3D में जाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे कॉलम प्लेस हुआ है. ओके, सो यहाँ पे अगर आपने देखा कि मैंने फर्स्ट फ्लोर दिया था, ओके, फिर भी एक कहीं पे बीच में स्टार्ट हुआ है. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक बेस ऑफसेट था जो कि मेरे ऑब्जेक्ट में पहले से मैंने दिया हुआ था. तो अगर आपको वो अवॉइड करना है तो आप उसको भी जब प्लेस कर रहे हो तब आप दे सकते हो. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है डेप्थ फ्रॉम द लेवल 1. सो इसका लेवल है बट यहाँ पे मुझे डेप्थ नहीं, हाइट चाहिए. ओके, फ्रॉम लेवल इज ग्राउंड, देन लेट्स से कि हाइट अप टू लेवल 5, देन यू कैन प्लेस इट. अभी यहाँ पे देखो स्मॉल करके आप प्लेस कर सकते हो उसको जहाँ पे आपको प्लेस करना है. सो अगेन गो टू देयर 2D, सॉरी कहाँ पे लेवल 2 में मेरे पास ग्रिड है सपोज, यहाँ पे यू कैन प्लेस इट लाइक दिस. एग्जैक्टली वो सेंटर पॉइंट पिक करेगा. Can you please repeat this again? क्या हुआ? Like what happened? It start with the level 1 and we want it from the ground. Some ओके ओके ओके, ठीक है, आई विल रिपीट, जस्ट अ मिनट. सी अभी मैं लेवल 2 पे हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने लेवल 1 में मेरे सारे ग्रिड्स ऑफ किए थे. ओके, सो मैं कंफ्यूजन के लिए एक काम करता हूँ, ये निकाल देता हूँ. सो विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट टर्न ऑन द ग्रिड्स हियर ओनली. इसको यहाँ पे ग्रिड ऑन करता हूँ. यहाँ पे मुझे सपोज प्लेस करना है कि सारे वॉल्स में भी डिलीट करता हूँ, ओनली कॉलम हमको यहाँ पे प्लेस करने हैं. ओके, सो मैं one सबसे more पहले question. Sorry to interrupt. Yeah. Wall. If we create a wall and then we place a column, like in a architecture's platform, तो वो क्या बताएगा? Conflict बताएगा? क्या बताएगा? Like it will accept as a corner element, और या फिर वो बोलेगा कि something is already there and you are putting some other element. वैसे तो वो एरर नहीं बताएगा, बट आपको ओवरलैप आपको जब करोगे ना तो यहाँ पे एक एरर आता है कि सम एलिमेंट्स आर ओवरलैप और हाईलाइटेड करके. यहाँ कॉर्नर पे एक पे बॉटम में ऑलरेडी आप वॉल है और उसमें आप कॉलम डाल रहे हैं. एग्जैक्टली तो वो आता है कि सम एलिमेंट्स आर हाईलाइटेड और ओवरलैप करके एक छोटा एरर देता है. बट वैसे भी सभी कमी मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं होता है उससे. बट ओनली द थिंग इज वो मॉडलिंग एरर या फिर जब आप उसका बीओक्यू एक्सट्रैक्ट करते हो ना तो उसमें वो एक्स्ट्रा पकड़ के आएगा. बट अगर आपके पास पहले से कॉलम है तो जनरली हम लोग कॉलम को ओवरलैप नहीं करते हैं.
सो पहले अगर आपके पास सेंट्रल लाइन प्लान है, देन यू जस्ट इनिशियली पुट द कॉलम एंड देन आप वॉल ड्रॉ करो अच्छा, ओके। कॉलम के फेस से आगे ऐसे। ओके, सो लेट्स से कि अभी मैं जाता हूँ कॉलम में, आर्किटेक्चर कॉलम में। सो यहाँ पे प्लेस करने से पहले यहाँ पे मुझे हाइट, मतलब यहाँ से लेवल 1 से मुझे हाइट सपोज करना है प्लेस। सो मैं बोलता हूँ ग्राउंड फ्लोर। सो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आता है कि टॉप कंस्ट्रेंट इनवैलिड इन द लेवल। ओके, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू डिसाइड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले जो भी कॉलम मुझे प्लेस करना है, so उसका मैं डेप्थ अगर करता हूँ तो मुझे डेप्थ एग्जैक्टली किस लेवल से चाहिए, या फिर हाइट अगर मैं प्लेस करता हूँ तो मुझे वो किस लेवल से चाहिए, ये मुझे यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो ऑलवेज मैं लेवल 1 में प्लेस कर रहा हूँ। सो लेवल 1 मतलब एग्जैक्टली मेरा ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कंफ्यूजन के लिए। सो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है। सो ग्राउंड फ्लोर मतलब मेरा लेवल 1 है। सो मैं यहाँ पे इसको जस्ट राउंड करता हूँ। सो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर में अगर ओपन किया एंड देन यहाँ पे अगर मैं कॉलम प्लेस कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे कॉलम का टाइप्स भी है। सो जो भी आपको प्लेस करना है वो आप प्लेस करो अलोंग द हाइट। सो हाइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। ओके, सो लेट्स से कि अभी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से मुझे प्लेस करना है अप टू फर्स्ट फ्लोर। सो मैं फर्स्ट कॉलम यहाँ पे प्लेस करूंगा। ओके, देन सेकंड यहाँ पे प्लेस करूंगा। एक बार प्लेस होने के बाद मैंने अप टू ग्राउंड टू फर्स्ट दिया था, देन आई विल गो टू 3D व्यू। सो सी, मेरा फर्स्ट फ्लोर से लेके वो वहां तक क्रिएट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप मल्टीपल, अभी जो मैंने ऑप्शंस आपको मैं बोल रहा था कि सारे इंटरसेक्शन पे विद इन वन सिंगल क्लिक आप कर सकते हो, बट वो ऑप्शंस आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट में अवेलेबल है, नॉट फॉर आर्किटेक्चर। ओके, अगर आप डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखाई देता मुझे। बट अगर सेम चीज मैं स्ट्रक्चर कॉलम में जाता हूँ तो सी एड ग्रिड ऑप्शन एक मुझे मिल रहा है। ओके, सो अगर मुझे ऐड ग्रिड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक कॉलम चाहिए ना सर मुझे ऐड ग्रिड में। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं सिंपली लोड कॉलम करता हूँ एक डिफरेंट आर्किटेक्चर का ही। ये आपका लाइब्रेरी होता है, मैं लाइब्रेरी बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चरल कॉलम कंक्रीट, यस दिस वन। ओके, सो ये वाला जो कॉलम है ना, मुझे ये वाला कॉलम यहाँ पे प्लेस करना है सारे ग्रिड लोकेशन के ऊपर। ओके, 750 बाय 750। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड ग्रिड का ऑप्शन यूज करूंगा और सिर्फ ग्रिड चूज करूंगा लाइक दिस। तो जितने भी ग्रिड कॉलम है ना, यहाँ पे वो ऑप्शंस कॉलम मेरे क्रिएट हो जाएंगे। कॉलम्स में लोडेड एग्जिट द कमांड, कॉलम लोड नहीं है, ठीक है, ये पहले प्लेस करना पड़ेगा मुझे। यस, क्या हो रहा है, ठीक है, एक बार ये चेक करने के बाद फिर आप इसको परफॉर्म करो एंड देन you can able to place the column. So go here, add grid. So first choose height, first floor. Okay, ये कितना height आपको देना है, that you can decide here, and then add grid option. See, सारे इसमें आपको कॉलम दिख रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जितने भी ग्रिड इंटरसेक्शन आपके पास रहेंगे सारे इंटरसेक्शन में आपको कॉलम जनरेट होते हुए दिख जाएंगे। और सिंपली इसको फिनिश कर दो, सो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम जनरेट हो जाएंगे एग्जैक्टली ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट। बट वो ओनली फॉर स्ट्रक्चरल है, आर्किटेक्चर के लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास नहीं है। और जो भी हम लोग आर्किटेक्चर में करते हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस रहता है, बिकॉज अगर कुछ चेंजेस होते हैं और वो भी अगर स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से पॉसिबल नहीं होता है तो स्ट्रक्चर इंजीनियर हमेशा बोलता है कि ये चेंज करो कि या फिर वो चेंज करो। बिकॉज आर्किटेक्चर लोग क्या होता है कि वो इनोवेशन के लिए, मतलब इनोवेट दिखने के लिए अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, बट वो स्ट्रक्चरली लोड मतलब फिजिबल नहीं रहेगा। ओके, लोड कैलकुलेशन के हिसाब से तो कॉलम का या फिर इसका चेंज पोजीशन चेंज हो सकता है। सो बेसिकली वो एक रीजन है। वो कमांड आपका आर्किटेक्चर के पास जब आप आर्किटेक्चर कॉलम प्लेस करते हो तो वो एड ग्रिड ऑप्शन आपको मिलता ही नहीं है डायरेक्टली। सो डायरेक्टली आपको मैन्युअली 1 बाय 1 वो प्लेस करते जाना पड़ेगा।
ओके, सो ऐसे आप कॉलम का पोजीशन प्लेस कर सकते हो ऑन ग्रिड, सी लाइक दिस। ये जो कॉलम दिख रहा है इट इज इन बिटवीन द पैनल, नॉट ऑन द इंटरसेक्शन, लेकिन हमने तो प्लेस किया था इंटरसेक्शन पे। क्या क्या? ये कॉलम हमने जॉइंट्स पे प्लेस किया था ना, प्लान में कैसे हाँ, हाँ कहाँ पे ये दिख रहा है? है, ग्रीड के जंक्शन पे प्लेस किया था, लेकिन अब भी दिख रहा है वो सेंटर बीच में। हाँ नहीं, एग्जैक्टली सेंटर में हम लोगों ने प्लेस किया ना, सी। लेकिन अभी मैं आप 3D व्यू के टॉप, नहीं मैं 3D व्यू में हूँ, आप उसको 3D में एक टिल्ट एंगल से दिख रहे देख रहे हो ना, इसलिए वो हाँ आपको सर्टन इससे मुंह नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं 3D व्यू के अगर टॉप व्यू में जाता हूँ, सो आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे एग्जैक्टली वो सेंटर में है। वो मतलब क्या होता है 3D व्यू में अगर आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा टिल्ट दिखता है आपको, सी। तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, थोड़ा दूर है, बट वो सेंटर पे प्लेस है। जस्ट मिनट, मैं इसको लेवल को पहले हाइड कर लेता हूँ, इसमें और क्लियरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी कोई भी एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा एग्जैक्टली सेंटर पे है, बट वो 3D इंक्लिनेशन में वो थोड़ा सा दूर दिख रहा है आपको। ये देखो, दिख रहा है? ओके यस। ओके। ओके, सो अभी ऐसे आप ये कॉलम सारे इसको प्लेस कर सकते कॉलम मुझे एक ही कमांड में निकालना है तो अनडू हो। करना है तो? एक कॉलम सिलेक्ट करो, एक शॉर्टकट होता है सिलेक्ट ऑल का, उसको बोलते हैं यस ए। अगर आप कीबोर्ड में यस ए प्रेस करोगे ना, सिलेक्ट ऑल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, सारे कॉलम 64 कॉलम है मेरे पास, 64 मैंने सिलेक्ट किया अभी। तो यस ये टाइप करूंगी तो इफ अदर एलिमेंट्स आर देयर वॉल और वो सब तो नहीं नहीं, मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कॉलम यस को ए किया है। सिलेक्ट किया। ओके ओके। हाँ, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करते हो, उसके वो एसोसिएटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वही सिलेक्ट होंगे आपके। ओके। ओके, सो ऐसे आप उसको कॉलम पोजीशन ग्रिड के हिसाब से, या फिर आपका जो भी 2D लेआउट रहेगा उसके हिसाब से आप प्लेस कर सकते हो। ओके, एंड वर्कशॉप्स, लाइक लास्ट का जो हमारा पॉइंट है आज का, तो वर्कशॉप मीन्स वर्क प्लेस, लाइक जो भी वर्क प्लेन आपको सेट करने हैं, कौन से प्लेन में आपको कुछ ड्रॉ करना है, एक्सक्यूज लेट्स से मी, कि अभी। हेलो, ये हमें लेवल्स कैसे ऐड करने होते हैं? मतलब मैं आई फॉरगॉट अपने स्टार्ट में कैसे किया था वो। लेवल, सो लेवल आपको एलिवेशन में जाके यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लेवल यहाँ पे 11th है, देन यहाँ पे लेवल टैब है, इसको क्लिक करो, पिक लाइन हाँ को वो चूज वो करो। लेवल टैब आता ही नहीं है, मतलब मैं आर्किटेक्चर में जाता हूँ फिर वो इनवैलिड दिखा रहा है, वो एक्टिव नहीं मैंने हो वही रहा है। बोला, मैंने वही बोला फर्स्ट थिंग आपको, कि लेवल टैब इज ओनली विजिबल इन एलिवेशन, नॉट इन एनी अदर। सो आपको पहले एलिवेशन में ही जाना पड़ेगा, तभी आपको लेवल टैब ऑन दिखेगा। बिकॉज कोई भी अदर व्यू में वो आपको दी एक्टिविटी दिखेगा, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ एंड सिर्फ एलिवेशन में ही आपका लेवल टैब ऑन होगा। हेलो हेलो, करेक्ट? सॉरी बहुत फुल, आई थिंक हेलो, मेरे इधर से कुछ प्रॉब्लम था। आपने बोला एलिवेशन ऑन करना होता है ऐसे कुछ ना? यस यस, एलिवेशन में आप पहले एलिवेशन आप ओपन करो कोई भी एक, और उसके बाद आपका लेवल टैब ऑन होगा। एलिवेशन कैसे ओपन करते हैं सर वैसे वो? आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में दिख रहा होगा ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ को, सो किसी को किसी एक के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे ना, तो वो मतलब जब भी कोई व्यू ओपन होता है ना, वो बोल्ड में दिखता है। लेट्स से अभी मेरा एक्टिव कौन सा है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ आपको देखो थोड़ा सा बोल्ड लेटर में दिख रहा होगा। अगर मैं शफल करता हूँ लेवल 2 में, तो यहाँ पे देखो मेरा लेवल 2 बोल्ड में दिख रहा है। सो जो भी बोल्ड दिखता है वो आपका एक्टिव लेवल है, ऐसे समझ लो आप।
राहुल उनको वो दिखाओ कि प्रोजेक्ट ब्राउजर कहाँ से एक्टिव करना है पहले। अच्छा, प्रोजेक्ट ब्राउजर नहीं दिख रहा है जी। आपको? ओके, सो राइट नहीं, क्लिक मैंने करो। सिलेक्ट तो किया है बट वो आ नहीं रहा है, टिक मार्क दिखा रहा है बट प्रोजेक्ट ब्राउजर दिख नहीं रहा है वो मुझे। प्रोजेक्ट ब्राउजर में जो अपना ऑप्शंस होता है वो दिखा दीजिए ना उनको राहुल जी। सी, अगर प्रोजेक्ट ब्राउजर आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है तो एक तो माउस का राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा। ब्राउजर में फर्स्ट ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट ब्राउजर, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट ब्राउजर आपका आता है तो वहाँ पे आपको फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, 3D व्यू, एलिवेशन, ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इफ पॉसिबल अगर आपको होगा तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, इजी पीसी, माय बैड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आई गॉट इट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट था अपना वर्क प्लेसेस, और बेसिकली वर्क स्पेस बोलते हैं। सो कहाँ पे आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है? सो यहाँ पे वर्क प्लेन होते हैं आपके पास। ओके, वर्क प्लेन में सो यहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे आपको वर्क प्लेन सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप एक इमेज देख रहे हो, एक रूफ है, तो रूफ के लेट से कि मुझे इस साइड में कुछ जो रूफ विंडो होता है ना ग्लास वाला, वो अगर मुझे लगाना है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ऐसा मॉडल करना पड़ेगा वो ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। बट वो प्लेन इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन पे मैं डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकता, राइट? तो मुझे वो जो इंक्लाइन प्लेन है ना, वो इंक्लाइन प्लेन एज अ वर्क प्लेन पहले सेट करना पड़ता है। देन ओनली मैं अगर जो भी ड्रॉ करूंगा तो वो प्रॉपरली उसी फेस में आ जाएगा। मैं विदाउट कोई भी वर्क प्लेन सेट किए किए बिना अगर मैं उसके उसमें कुछ मॉडलिंग करने का अगर कोशिश करूंगा ना, तो कोई और फेस के ऊपर वो मॉडल हो जाएगा। तो वर्क प्लेन बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी प्लेन में किसी भी सेक्शन के ऊपर कुछ भी, मतलब किसी वॉल के ऊपर मॉडल करना है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ कोई चीज अगर मॉडल करना है, तो पहले वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज अ वर्क प्लेन आपको सेट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप उसके ऊपर कुछ मॉडल कर सकते हो। ओके, जो भी यहाँ पे इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इस साइड का इंक्लाइन फेस है उसमें अगर मुझे सपोज मान लो कि एक ग्लास विंडो लगाना है, ओके, जस्ट फॉर द वेंटिलेशन पर्पज इनसाइड द हाउस। सो मैं पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट मुझे एज अ वर्क प्लेन सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे सेट करते हैं? सो लेट्स से कि मैं फिर से दो वॉल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा रूम। ओके, और अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर वॉल में कुछ नाम लिखना है या फिर नेम देना है। ओके, सो मैं क्या कैसे करूँगा? लेट्स से मैं 3D में गया और यहाँ पे मैं जाता हूँ शेयर्ड व्यू में। ओके, अब ये जो वॉल है ना, ये वॉल के ऊपर मुझे कुछ नाम लिखना है, तो मैं अगर कुछ भी अगर लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे आता है? मेरा ग्राउंड, मेरा जो अभी मेरा जो वर्क प्लेन है वो मेरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है, मतलब डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर आता है सब कुछ। मॉडल करो आप, कोई भी कॉलम दो, वॉल दो, कुछ भी करो, ग्राउंड के ऊपर आएगा। तो मुझे इस फेस के ऊपर चाहिए। ओके, तो वो मैं कैसे करूंगा? सो लेट्स से कि सबसे सिंपल है, मैं मॉडल टेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। सो अगर मैं ये वाला टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये देखो कहाँ पे आ रहा है? ग्राउंड के ऊपर आ रहा है, बिकॉज मेरा वर्क प्लेन कहाँ पे है अभी? हॉरिजॉन्टल, मतलब प्लेन वाला है जो कि ग्राउंड है। सो यहाँ पे ये आएगा आपका 3D टेक्स्ट, बट मुझे कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए, इस वॉल के ऊपर। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका वर्क प्लेन एज अ वॉल सेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं वो कैसे करूँगा? सो पहले मैं सेट करता हूँ, देन यहाँ पे मैं पिकअप प्लेन बोलता हूँ। ओके, देन मैं इसको ओके करूँगा और ये वाला प्लेन मैं सेट करूँगा। ओके, अभी मेरा ये वाला प्लेन सेट है। अब मुझे देखना है कि एग्जैक्टली सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं शो ऑप्शन है, मैं शो के ऊपर क्लिक करूंगा। सो देखो ये हाईलाइट हो रहा है कि मेरा भी वर्क प्लेन, मतलब जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरा ए वाला फेस है। सो मैं अगर कुछ भी मॉडल करूंगा, कुछ भी प्लेस करूंगा, सब कुछ मेरा इसी प्लेन इसी फेस के ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर मैं टेबल भी प्लेस करूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे प्लेस नहीं होगा, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, बिकॉज ये मेरा अभी वर्क प्लेन है। सिंपली मॉडल टेक्स्ट, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से कि बिम, तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। सो नाउ यू कैन सी इस वाले फेस में आ रहा है लाइक दिस। सो ये होता है आपका वर्क प्लेन सेटिंग। सो हर मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ मॉडलिंग करोगे, बंगलो, सपोज बंगलो में बहुत एस्थेटिकली लुक्स वगैरह देते हैं ना वो लोग, तो हर एक के लिए आपको उस पर्टिकुलर वॉल के ऊपर, उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर एक प्लेन सेट कर करके वहाँ पे मॉडलिंग करना पड़ता है। सो उसके लिए वर्क प्लेन सेटिंग आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जाके आप वो वर्क प्लेन सेट कर सकते हो।